Namaste everyone, Pranam, Hari Om. So sorry for the delay. Can't help it. We'll start the class. Om Sadashiva-Samarambham Shankaracharya-Madhyamam Asmadacharya-Paryantam Vande Guru-Paramparam. Shruti-Smriti-Puranaanaam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat-Pada Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviran Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Shanti, Shanti, Shanti. And welcome back. Yes. So we are seeing Atma Bodh and on the topic of Shastra's methodology of conveying the truth, Satyam, regarding one's own nature, one's own being. The method is in the process of negation, negating what is a false appearance. I'll rephrase this. Because there is an appearance, it is false. Whatever has an appearance is not Satyam. What is and remains changeless, that alone is Satyam. So whatever has an appearance is, by the very fact that it appears, means it has a beginning. Appearance means it will appear at a certain point in time and space, manifest. Whatever will have a beginning, Siddhant is, it will also have an end. There are two sides of a scale. जो आरंभ होता है उसका अंत होता है. आरंभ होने का अर्थ ही ये है कि ये समय में, काल में, व्यवस्था में बंधा है, लिमिटेड है.
It is limited by time, space, and vyavastha. So it is but natural going to undergo change. Appearance itself is a change. What is not is now appearing. What was not is now seen. Whatever is manifest will obviously undergo change and become unmanifest. ओझल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. इंटीग्रेट है तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कंबाइन है तो डिसजॉइंट हो जाएगा. Whatever it is made up of, it will return back to its source. Swapna appears. Dream appears. By the fact that it appears, it has fallen in the definition of its disappearance. It is false. सत्य नहीं है. अगर आया है तो ये जाएगा. जागृत appears. If it's appearing, it disappears. Janma appears. If it appears, it will go. Birth, जन्म हुआ है ना. बर्थ डेट इसलिए है हमारी, उसके पहले तो नहीं था और उसके बाद नहीं होगा. Appears, disintegrates. Everything in life which we see with the vision of permanence, हमारी दृष्टि में, बुद्धि की दृष्टि में, मन में, सोच में, समझ में एक दृष्टि है. And that drishti is of permanence. Somehow, the impermanence means जब शुरू हुआ है वो जाएगा. That means it's impermanent. ये नित्य नहीं है. What has started will end. That means it's impermanent. It is not permanent. Not permanent means नित्य नहीं है ये. Appearance means अनित्य है. But उस अनित्य में हमारी दृष्टि में एक नित्यत्वम का बोध है. Somehow it is not in acceptance, even though it is maybe intellectually appreciated, but it is not in acceptance of the impermanence of life, things, manifestation, etc. For many, many years now that we are all growing up, growing into the next decade, probably, hopefully, you see some people who have just passed away. A very close one, probably yesterday someone passed away. Now, you'll reflect back, there was a whole house filled with vyavhar, laughter, fun, ana jana. When the children were growing up, the parents had friends, etc., etc. Ultimately, it's an empty, call it nest. खाली है. 40, 50, 60 साल जब वहां जीवन बीता,
उस समय उस व्यवहार में एक इम्पर्मनेंस नहीं फील होती. But when you look from the fast forward mode and look back, it was always impermanent. Even that today, what looks to be permanent is again impermanent. Idea is Shastra is the purpose of Shastra Vidya is ये जो हम जीव के अंदर एक बुद्धि, I use buddhi word because it's just an available understanding. Human beings have this naturally accepted understanding that things are going to last. They continue. और वो एक सत्यत्व बुद्धि जो हम बाहर आरोपित करते हैं, चीजों में, रिश्तों में, वस्तुओं में, एक्सेट्रा, वो शास्त्र says there is a correction required in the drishti, fine tuning. I still give an example, when you keep something under a microscope to see, initially it's blurred because the lens doesn't focus straight away. You have to fine tune it. When you fine tune it, you see the details of that, what you are observing under. So if it's a petal or something, if it's a leaf, the pores are also visible because that lens will magnify everything. How did the lens magnify? Lens always had the capacity to see the detail. But why was it not being able to see? Because it was out of focus. What did it need? It just needed refocusing. In the same way, this human upadhi has in it the capacity to know the satyam, permanent. But होता क्या है? हमारा लेंस थोड़ा ट्यून नहीं है, out of focus है. So when it is out of focus, we are seeing the images of the world presented in front of us through the senses, and we see them as if they are the only reality. What is the out of focus? Seeing them as if they are real. When we fine tune it, fine tune our drishti. कैसे करते हैं fine tune? Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Shastra is telling us through the process of negation of what appears, what has a beginning, what is seen, what is a temporary experience, observing it and retuning your sense of reality in it. Means I have to drop the sense of reality in it. I have to recognize the reality is not on these objects, not on the world. The reality is in that which is supporting the whole vision, is in that which is the Adhar, Adhishtan. What is that which is? That where an empty nest is now, वहां क्या है? कुछ तो है. Forms आए, forms गए. It's very beautiful if we all slip into the mananam of these verses. ये श्लोकों के ऊपर. जीवन हमारा
इतना है, whatever, plus minus. This is it, 50, 60, 70, 80, 90 if you're very lucky. Bas, this is it. And through a lot of other texts and understanding in the past, we have already known that Balastavat, Yauvanavastha, age, the focus remains on outside. The focus remains on maintaining, sustaining the force of life within this body. उसी में हमारी सारी एनर्जी संचित रहती है. इसी को हम जीवन कह देते हैं. Within this time span, we have an opportunity, Shastra says, कि आप इसके जो always है, हमेशा है, उस पे अपनी दृष्टि डालो. I'm using very normal word, almost a शास्त्रिक. प्रक्रिया बता रहे हैं. प्रक्रिया जो शास्त्र हमें कहती है, क्या कह रही है? अपनी दृष्टि को पासिंग ही रहने दो और दृष्टि को अपनी बदलो. पुट इन दी साधना, थोड़ी तपस्या, थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी कोशिश, थोड़ा अल्पम. कहां? ये जो आ रहा है, जा रहा है, उसका अधिष्ठान तो होना है ना. The dream has to have a locus. Dream doesn't appear nowhere. It must have a adhishthan where the dream appears. कहां दिख रहा है स्वप्न मुझे? वो जहां दिख रहा है स्वप्न, उसको दृष्टि में लाओ. दोनों साथ चल रहे हैं. स्वप्न भी है और स्वप्न बिना उसके अधिष्ठान के हो नहीं सकता. एग्जाम्पल, मूवी एंड द स्क्रीन. मूवी चल रही है, बिना स्क्रीन के मूवी चल सकती है? नहीं चल सकती. मूवी चल रही है में अगर हमारा ध्यान रह गया और हमारे मन में ये विचार भी ना आए, अरे मूवी का अस्तित्व is entirely dependent on the screen. If there is no screen, however well made a movie is, you can't view it. इसका विचार अपने जीवन में देखना, एग्जाम्पल के थ्रू, entire आत्मबोध is helpful because it gives us drishtant of various kinds to help us to reflect. इसको अपने जीवन में देखना. क्या देखना है हमको? ये आ रहा है, जा रहा है जीवन. Day after day we are there. Just as स्वप्न आ रहा है, जा रहा है, and where it comes and goes remains untouched. क्योंकि वो रहता है, mark the words now, जो untouched रहता है, क्योंकि वो है, that is why एक और स्वप्न आ सकता है. अगर वो स्वप्न के साथ नष्ट हो जाए, जब स्वप्न खत्म हुआ तो वो भी, मतलब स्वप्न alone was there, तो आपको but natural next dream, you need another adhishthan for it. But it doesn't happen. You sleep off any time. You can have any number of dreams.
What is the mananam? This is important here now. ये जो मेरी आइडेंटिटी जिसको मैं कह रही हूं, इस शरीर के साथ जुड़कर, ये सत्य है क्या? अगर मैं कहूं कि इसका अपीयरेंस हुआ है, जन्म हुआ है इसका, अगर इसका जन्म हुआ है तो इसका अधिष्ठान है। कहां है अधिष्ठान? क्या है अधिष्ठान? Because without their having a base, adhishtan means what? If anybody doesn't understand the word adhishtan means what? The very base. It's like if there is no ground, if there is no earth as stable, all available, all pervasively there, spread throughout what we call as earth. If we don't have ground, we don't have grains. क्योंकि for grains to grow, it needs adhishtan. That adhishtan has to be there. शास्त्र का ये जो मेथड है, in these few verses, if you just look at verses, they are very easy to bypass. इनको समझना कोई कठिन काम तो है नहीं, शास्त्र पूरा समझना कोई कठिन काम नहीं है। मगर अगर आप 33rd वर्स को ही देख लो, and 33rd verse says amanastvat, means that adhishtan is without mind. उसमें मन नहीं है। जो है सत्य उसमें मन नहीं है, वो अमन है। इट्स क्वालिफाइड अमन, जहां मन नहीं है, जो मन नहीं है। एंड व्हाट इज मन टू अस? What is our definition of man? One of the definitions of man is संकल्प विकल्पात्मक मनः। जहां ये विचारों की गति चलती है, जहां ये संशय है, जहां गति है विचारों की, where thoughts are always in a mode of movement, वही हमारा माइंड है। इफ वी से ये मुझे नहीं पहचान में आ रहा, हमको मन नहीं समझ में आ रहा, शास्त्र कहता है ये वही है जहां जो आप जिसको राग द्वेष भय आदि कहते हो, यही मन है। मन कोई अलग एंटिटी नहीं है। As you have a gross body, you are able to quantify it, qualify it, because grossness has qualities. That's why it is gross. Definition of gross क्या है? स्थूल का definition क्या है? स्थूल मतलब वो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है। बिकॉज ऑफ दोज प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज उसमें स्थूलता है, और जहां स्थूलता है वहां प्रत्यक्षता है। प्रत्यक्षता मीन्स वही मैनिफेस्ट होता है, वही अवेलेबल फॉर सेंसरी परसेप्शन है। स्थूल होने का मतलब है इट इज ऑन the spectrum में, it is now grossified. It has gone through all the vikars, and those vikars have now manifested as appearance in a gross state. ये जो gross है ये प्रत्यक्ष है, मगर मन हमारा सेंसेस के थ्रू नहीं जाना जाता, प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है। राग द्वेष भय आदि प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ये जाने जाते हैं। You can know them. I know I have likes and dislikes. I know I have anger. I know I have fears. I know I have uncertainties. I know I have etc. etc. ये सब मुझे जाने जाते हैं।
सो जब मुझे जाने जाते हैं, दैट मीन्स ये अपीयरेंस है, जाने गए ना। अगर आप एक पल अपने आप को बस सो, लाइक द प्रीवियस वर्सेस हैड सेड, अपने आप को बस बोलो कि मुझे इनसे जुड़ना नहीं है। मनः शास्त्र का कहता है जो सत्य है वो अमन है। तो मन सत्य नहीं है ना। सो फार वी आर राइट, गोइंग अलोंग विद द शास्त्र। तो जो सत्य नहीं है उससे हम पृथक हो सकते हैं, क्योंकि उससे जुड़ाव जो हमारा है, जो जो हमें एक जैसा लगता है, दैट जुड़ाव इटसेल्फ इज द फॉल्सनेस। Can you hold on to a dream however much you want? A dream, स्वप्न से कितना भी हम स्वप्न में इन्वॉल्व्ड हैं, कितना भी स्वप्न में इन्वॉल्व्ड है, nobody has ever regretted waking up from a dream, however beautiful the dream is. Nobody has felt an abhav, a loss, for having woken up from a dream. ड्रीम से अपने को अलग करने में nobody has ever felt a loss. मेरा कुछ खो गया, ऐसा किसी को नहीं लगा। मेरा कुछ छूट गया, मेरा कुछ रह गया, मेरा कुछ पूर्णता में कमी रह गई, मुझे कुछ और प्राप्त हो जाता। कितना भी अच्छा स्वप्न क्यों ना हो या बुरा हो, either of them, when it ends, nobody ever says I want to get back and get reconnected to the dream and the dreamer. Why? Because it is on waking up automatically understood that that was just a ghost. It was an appearance. ये मनन जागृत में होते हुए, जागृत को एक्सपीरियंस करता हुआ जीव अपने मन से जुड़ा हुआ है। शास्त्र कहता है अभी भी तुम जस्ट एज स्वप्न में अपने मन से जुड़े हुए, स्वप्न में जुड़े हुए आपको लगता है वो रियल है, बट है नहीं, वैसे ही जागृत में अपने मन से, अपने विचारों से इतना संग है हमारा। व्हाट इज संग? जुड़ा हुआ होना। इतना जुड़ा हुआ है संग हमारा अपने विचारों से कि हमारी दृष्टि में हम ये देख नहीं पाते, टिल द शास्त्र nudges us to look at it, कि हम इनसे जुड़े हुए हैं ही नहीं, बाय नेचर नहीं है, हो ही नहीं सकते। जस्ट एज हम ड्रीम में जुड़ ही नहीं सकते ड्रीम से। ड्रीम में ही मैंने अपने आप को देखा, बट जुड़ नहीं सकी। यही चीज जागृत में क्यों नहीं हो पाती? Whereas don't we know that Jagrat is also temporary? Don't we also know that Jagrat is also just an appearance? ये तो हमें खुद को अनुभव में है ना। That where is the solidarity in the Jagrat अवस्था? कुछ भी बता दो, कुछ भी दिखा दो। In this world, it's fascinating कि we all know we are here for, it's purely, it's purely karma phala.
that brings situations to life. मतलब हमारे अनुभवों में जो जीवन दिखता है ना हमको, वो प्योर कर्म फल है. I don't know if I have been able to express this well enough. The sense of reality जो हमको लगती है जीवन में, अपनी एक्सपीरियंस जो हमारे मन को लेके है, हमारे मन में हमें क्या लगता है, ये सब रियल है. Am I making sense? Coherent? समझ में आ रहा है ना? I'm not jumping steps and नहीं ना? What is really happening in the mind? The topic is, I'm restarting. If any of you has lost the thought, the topic is शास्त्र हमें नेति नेति की प्रक्रिया बता रहा है. Verses का explanation is very easy. Another 2 verses will finish the topic. But in these 6-7 verses is the entire process of Vivek and Nididhyasan embedded. हम उसको अनफोल्ड करने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं. उसका एक एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं कि शास्त्र कहता है जहां भी आपको स्थिरता, परमानेंस दिख रही है एक्सटर्नल जगत में, इंद्रियों से आपको जो भी अनुभव हो रहा है और आपको ये सब रियल लग रहा है, यही काल है, यही समय है, यही जीवन है. अभी सिर्फ आप ये निश्चय कर सकते हो कि ये सत्य है कि नहीं है. Now am I clear? While there is still life, it is still discernible. विवेक कर सकते हो कि ये जीवन जो मुझे दिख रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है और बीतता जाता है, टिक 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 टिक, काल का पहिया घूमे रे भैया, ये नहीं थमता. Now here I made a big statement in a way. The sense of reality that we experience in the world through the body is entirely karma phala. कर्म फल मैनिफेस्ट होती है, उसको एक जीवन, आई हैव नो अदर वर्ड, उसके अंदर एक जीवनत्वम एक्सप्रेस होता है जब एक कर्म फल मैनिफेस्ट होना है. तो दिस एवर देयर, लाइक ग्राउंड, लाइक अर्थ, लाइक स्काई, स्पेस, विच इज एवर देयर. ऋतु आती है, ऋतु जाती है, जब समय आता है तो उसी ग्राउंड में वो पेड़ पौधा बड़ा होता है. Means what? This adhishtan remains. It's a fairly subtle vichar. The adhishtan always is, जिसको शास्त्र ने हमें ब्रह्मन कहा है, क्योंकि ये ब्रह्मन है, ये वास्ट है, ये नित्य है. यही लक्षण वो आगे हमें दे रहे हैं. बट इन द प्रोसेस ऑफ नेगेशन हम जिसको परमानेंट समझ के जुड़ गए हैं, वो उसको नेगेट करने को कहते हैं. सो बिकॉज देयर इज एन अधिष्ठान, हमारे कर्म फल अपने आप से पक नहीं सकते टिल देयर इज अ चैतन्यम बिहाइंड इट, क्योंकि वो तो जड़ है कर्म फल. तो जैसे ही हमारा फल पकने की अवस्था में आता है, चेतन उसको मैनिफेस्ट कर देता है. मतलब चेतन की अवेलेबिलिटी रहती है.
और वो अपने समय पे जब मैनिफेस्ट होना है वो मैनिफेस्ट होता है एंड ग्रॉसिफिकेशन स्टार्ट्स एंड वंस ग्रॉसिफिकेशन स्टार्ट्स there is an experience of this and we find ourselves with a body and we think we are born and ये अब हमारा मन है. मन को ही इन्होंने दूसरे वर्ड्स में as we've seen in other texts शास्त्र has said मनोबुद्धि चित्त अहंकार यही आपका अंतकरण है. ये स्थूल शरीर हमारा स्थूल एलिमेंट से बना है बट सूक्ष्म शरीर हमारा मनोबुद्धि चित्त अहंकार ये जो है ये सिर्फ प्रतीति है. They are not known by the senses. In other words, thoughts cannot be known by the senses. इंद्रिय तो नहीं जानती हमारे विचारों को. आईज इंद्रिया तो 5 ही है. परसेप्शन ज्ञान इंद्रिया. कर्म इंद्रिया तो जान ही नहीं सकती. कर्म इंद्रिया तो करती है जानती तो है ही नहीं. अब ज्ञान इंद्रिया हमारे विचार को भी नहीं जान सकती. तो हमारे अंतःकरण में ये जो बोध है थॉट्स का विचारों का ये मन है. इसमें है हमारा कंपोनेंट अहम कर्ता इति अहंकारः. ये एक जो प्रतीति है इट्स अ थॉट आई एम. ये जो अहंकार अहम करोति इति अहंकार अहम कर रहा है. ये अहम कर्ता अहम कहने वाला एक्सपीरियंस करने वाला अनुभव करने वाला ये अहम वस्तुतः है नहीं. ये भी वन ऑफ द थॉट्स है. राग द्वेष क्या है? थॉट्स है. फियर क्या है? थॉट है. ही सेज राग द्वेष भय आदि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य क्या है? ये सब थॉट्स है. विचार है. प्रतीति है. प्रत्यय है. दे आर ओनली थॉट्स. थॉट्स आर इंटरचेंजेबल. वी ऑल नो दैट. राग हमारा द्वेष में बदलता है. द्वेष हमारा राग में बदल जाता है. We know that. Anybody's experienced the change of the rag and dvesh ever? होता है ना. राग हमारा शुरू राग होता है. वो राग करते करते फिर अब वो कभी ना कभी द्वेष हो जाता है और द्वेष के बाद अब फिर तो की स्थिति आ जाती है कि भैया अब तो वो द्वेष में तो अब फिर से राग बनाना थोड़ा मुश्किल है. अब द्वेष के बाद नेक्स्ट स्टेज तो है कि अब तो कट असंडर. बिकॉज वो इतना बढ़ जाता है द्वेष में. द द्वैत भाव इतना बढ़ जाता है कि इट गोज अगेंस्ट योर ओन स्वरूपम ऑफ एकत्व कि वो जीव सहन ही नहीं कर सकता उसको क्योंकि वो अपने स्वरूप से ही बिल्कुल दूर हो गया. इसलिए वो द्वेष राग में तो एकता लगती है ना. तो राग तो हमें फिर भी ठीक लगता है. जोड़ देता है हमको बिकॉज उसमें एकत्व है. बट द्वेष तो बढ़ता रहता है और ऐसे बढ़ता है कि अंतकरण को पूरा पॉइजन सा कर देता है. जस्ट एज यू सी ऑल द नेगेटिव कैरेक्टर्स इन द पुराणास. ऑल आर पुराणास में ऑल द महाभारत इज एंटायरली व्हाट वी हैव सीन इट थ्रू द भगवद गीता आल्सो. पांडव और कौरवों का युद्ध क्या है? अपने ही अंतकरण के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का युद्ध है. राग और द्वेष के युद्ध हो रहे हैं अंदर. अपने ही है ना. कौन से बाहर बैठे हैं हमारे कजिन्स जिनके साथ हम लड़ रहे हैं? फिर तो ये महाभारत कहीं अप्लाई ना होती क्योंकि ये तो उनके साथ ही खत्म हो जाती. ये तो बहुत कम घरों में होता तो होगा बट फिर इट नॉलेज कैन नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू एवरीबडी. इट विल ओनली गेट अप्लाइड इन द होम्स वेयर कजिन्स आर फाइटिंग ओवर लैंड. ओवर रूलिंग.
तो ये this knowledge would have only applied to them then. It cannot become a universal knowledge then. But it is by showing us that it is available even in a few places, few situations, कुछ लोगों के साथ भी अगर हुई है, it is depicting कि ये सबके साथ हो सकती है. We are all in the same potential. हमारे ही अंतःकरण में जब कोई भी एक नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाए, क्यों बढ़ता है? How am I going to bring this into reflection? This verse 33. क्यों बढ़ता है? Supposing it's द्वेष. एक छोटी सी डिसलाइक बनती है, फिर बनते 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 एक सिचुएशन आ जाती है, कभी ना कभी वो मन का बहाव इतना तेज हो जाता है ऑफ डिसलाइक कि वो अब आके अपने आप को बिल्कुल भिन्न समझता है अपने से. That division is so strongly felt there. That creates more than anger and trust, etc., etc., etc. Shastra says, ये जीवत्वम में तुम जो नहीं है उससे जुड़ने का नतीजा है. अमनः, the mind which is entirely thoughts. राग द्वेष है. राग द्वेष अधिष्ठान नहीं है. जहां राग द्वेष हो रहे हैं वो भी नित्य वस्तु है, वो भी अनुभव में है. क्योंकि अगर वो अनुभव में नहीं होती तो आपको राग द्वेष अनुभव नहीं होता. अगर स्क्रीन होती नहीं तो आप मूवी देख नहीं सकते. I have not seen, but I believe Dhurandhar was real Dhurandhar. मतलब बहुत कुछ इमोशंस लोगों के उठे through a movie. I have not seen it, so I do not know. I'm not equipped to comment on it. But I'm just taking it as an example. आप जब उसको कुछ देख रहे हो, आपके अंदर अनुभव हो रहे हैं. There are bhavnas that are arising. There are feelings that come up. There is rag dvesh that happens. शास्त्र विद्या क्या कहता है हमको? Take it on an entertainment value is okay. But हमारे को जीवन में ये एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, ये संसार का बंधन है, ये कारण है. संसार हमारा यहीं से शुरू आरंभ हो रहा है. ये जो अहंकार से हम जुड़े हैं, अहम वृत्ति से, लेट्स पुट इट दिस वे, ये जो अहम वृत्ति हमको उद्भव हुई है, उद्भव तो समझते हैं हम सब. This aham vritti that has arisen in us as an experience, this aham seems to be very, very real. Whereas this aham is also a thought, जो हमको सबसे जोड़ रहा है. And when it is so, all this is amanaha. नहीं हूं, सत्य ये नहीं है. If I can distance myself from it, even for a little while, and when they are appearing, and when they are going, thoughts, before they come back again, it's a technique. Before they come back again, the same nature of thought comes back again. I should have done a little bit of parallel thinking, entertained different thoughts that Shastra tells me, and it says, amanaha. Example is, supposing it's dvesh. समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है तो I'll repeat. That's all I can do anyway. अगर द्वेष है, supposing, I mean, it's an example, take any example, but we are sticking to this because it's easy to identify. अगर द्वेष है तो एक साइकिल लाता है वो of all its feelings and अनुभव and everything,
And then you do something by nature. Nature helps us कि जब वो द्वेष बहुत बढ़ने लगता है beyond its capacity of you know, शास्त्र, nature has given us so much of a protection in lot of ways. मतलब आप सोच भी नहीं, हम जीव इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर ने कितने तरीकों से प्रोटेक्शन दिया है. एंड वन ऑफ देम इज व्हेन योर द्वेष ग्रोज बियॉन्ड अ पॉइंट, द जीवा कैन नॉट absorb it because it's against your very nature of ekatvam. At that point, nature shuts it off. Just as we have in the physical body, we have shock absorption reactions and things like that. Suddenly there will be mechanisms in which the jiva won't even, the brain won't register if there are certain, so there are these kind of chemical reactions, as the science would put it, etc. Nature has embedded all this. So what happens between two such experiences? When one arises and is just about diminishing, and before it comes back again, because स्वभाव नहीं बदलते जब तक विचार नहीं होता. Before it comes back again, in between, what am I supposed to do? In between is where I say, I have to make myself go through the tapas of saying, amanaha is satyam. अगर मैं अपने आप को मन समझती हूं तो ये सब अनुभव मुझे रियल लगते हैं. मेरा राग, द्वेष, भय आदि सब रियल है. बट अगर मैं अमनः समझूं अपने आप को, तो क्या हो जाता है? और अमनः में अपने आप को, आई एम नॉट creating a false notion. I'm only emphasizing on a truth which I am not connecting always with, the way I connect to the actual false, which is the body and the thoughts with it. उससे मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ तो वो मुझे हमेशा रियल लगते हैं. बट जो रियल है उससे मैं जुड़ती नहीं हूँ, नॉट एडिक्वेट इनफ, तो वो मुझे रियल दिखते नहीं है. It's as simple as that. So what does Shastra say? It says, now I'm being a little serious at this point maybe, life gives us very little window to do reflection. जीवन हमको एक जो मिला है, ये बहुत, क्या कह सकते हैं, बहुत कर्म फल का manifestation है. It is takes a lot of is from a jiva standpoint. Ishwar is absolutely, jagat में it only follows principles. हमारे मुमुक्षु के जीवन में अगर हमें इस जन्म को पकना है तो नेति नेति के साथ साथ, it cannot be once in a while kind of an exercise. It is a constant reflection कि जो नहीं है उसके साथ जुड़ना, ना जुड़ने का पहले मुझे प्रयास करना है. जो नहीं है उससे पहले मुझे ना जुड़ना, जुड़े हैं. आज हम अपने मन से हम जुड़े हैं. There is no denial of it. My mind is who I am. My thoughts are who I am. This is not who I am. पहले उससे अपने को, उन थॉट्स को त्यागना है, त्यजना है. उस जुड़ने को हमें त्यजना है. एंड अमनः, मन नहीं हो तुम तो क्या हो? सो नेक्स्ट वर्स ही सेज, निर्गुण हो. ना विचार और निर्गुण, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि गुण नहीं है. तो गुण नहीं है तो आपके विचार नहीं आएंगे. माइंड वर्क्स इन, इट्स अ सटल बॉडी. वो विचार विषयों को लेके कर सकता है
और विषयों से भिन्न होने का केंद्रित हो सकता है, लेकिन वो विचार नहीं होगा फिर. दैट इज योर फोकस, योर अटेंशन. Should I repeat this? What is mind do? Mind is thoughts. What can we do? We can think about them. What thoughts get entertained is all regarding objects that can have qualities, attributes. उसी को गुण कहा जाता है. Whatever has appearance has gunas, and because it has gunas, therefore it has the capacity to give us all kinds of feelings. अनुभव. कुछ सात्विक प्रीडोमिनेंट गुण होंगे तो हमारे मन में इंस्टेंटली कैसा विचार आता है? शांति का आता है. When you go to places like, I don't know about nowadays, but in the olden days, I'm talking about not my lifetime olden, I'm talking about olden, as a presumption that it must be like that, where genuinely in certain temples, when there was constant bhavna alive because of upasanas and karmas of, लेकिन वहां पे भावना of devotion was real, express होती थी. अब ऐसी जगहों पे you just have to enter. Okay, forget that. Has anybody who does chanting regularly about, say, Vishnu Sahasranam, Hanuman Chalisa or anything, जो भी आप करते हैं, अगर आप जब करते हैं, आप 2-4 दिन अगर नहीं कर पाए, for whatever reason, अगर छूट जाता है, and then एक अंदर ही अजीब सा कुछ होता है, और जब आप जैसे ही फिर से करते हो, आपका मन कैसा होता है? इंस्टेंट शांत होता है. इंस्टेंट. इट डजंट टेक टाइम. Instantly it gets quiet. You just feel connected again. You feel anchored again. That's the power of these practices. That's the strength in these practices. इनको क्यों बार बार करते रहना चाहिए? जीवन में क्यों इनको एक नियम बनाना चाहिए? Because without this, मनः अपनी ट्रिप पे ले जाता है अहम वृत्ति को. मन अपनी अहम वृत्ति को अपने ही ट्रिप पे ले जाता है. इंद्रियां के घोड़े हैं ना, तो मन हमारा उनके साथ निकल जाता है, तो वो अपने अहम अपनी ट्रिप पे निकल जाता है. क्या खींच के लाता है वापस? Is only these disciplines that when you keep doing them again and again, then those disciplines automatically quieten the mind. क्यों? क्योंकि वहां सात्विक गुण एक्सप्रेस्ड है. जैसा गुण होगा वैसा भाव बनेगा. If you watch a lot of exciting music concerts, supposing, okay, go to आजकल के solid concerts जो होते हैं, तो एक सोता सोता इंसान भी जाग के बाहर आता है. A very lazy person will love these rock music जो बहुत अंदर से हिलते नहीं है जल्दी. उन लोगों को ऐसे लाउड म्यूजिक, और क्यों? बिकॉज थोड़ी देर के लिए माइंड उनका एक्साइट हो जाता है, बिकॉज बाद में फिर जाकर forget that. It is an experiment done. It's not just with human beings. You have these lazy winters where a lot of animals get lazy, and everybody gets lazy, so animals also get lazy, humans also get lazy in winters and all. So there was this, they did this experiment around a community of pigs. So they बहुत ज़्यादा indolent थे, वो हिल नहीं रहे थे. So the farm owner decided to play loud music on a speaker. The minute the music started, धीरे धीरे, even they started. You literally have to believe this. You see it to believe it. What is the power of that sound? Shook you. थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे हिल गए सारे के सारे. Tried to show some life, and then it remained for some time, and the music died. It remained for some time, and then धीरे धीरे back to its okay. What is the point? ये सब गुण हैं. जहां जहां गुण होंगे वैसे वैसे हमको वो अनुभव देने का अनुभव देंगे.
अनुभव में आते हैं। दैट्स द राइट वे ऑफ पुटिंग। वही अनुभव में वही अनुभव देते हैं, वही अनुभव है, whichever way you put it. Whatever are the, if you go to a very nice quiet, some people don't like quiet places. वो डरते हैं शांत जगहों से, क्योंकि उनको अपने ही मन के विचार सुनने में आने लगते हैं। और कुछ लोगों को शांत जगहों पे जाना होता है क्योंकि उनके मन के विचारों को उनको सुनने के लिए बाहर से शांति चाहिए, क्योंकि इतना लाउड बाहर भी होता है, अंदर भी इतना लाउड है, तो अंदर का सुनाई नहीं देता है जब तक कहीं तो एक शांत हो। तो यू नीड टू टेक टू अ क्वाइट प्लेस। गुण है, जहां गुण है वहां पे मन का व्यापार हो रहा है। आपके अनुभव हो नहीं सकता गुणों का अदरवाइज। मेकिंग सेंस? मन का व्यापार हो रहा है तो वहां पे आपका निधिध्यासन क्या होगा? आत्मा, ब्रह्मन, नेति। ये जो व्यापार हो रहा है, हम इसको नेति थोड़ी कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनना है। हम इस व्यापार को, पूरे व्यापार को थोड़ी कह रहे हैं कि ये हो नहीं रहा है। वेदांत डजंट से दैट। मगर ये सत्य नहीं है, हम उसको नेगेट कर रहे हैं। ये गुणों का व्यापार है, ये निर्गुण नहीं है। ये निर्गुण का अनुभव नहीं है मेरा। हम ये नहीं कह रहे कि ये अनुभव नहीं है, लेकिन ये सगुण अनुभव है। पूरा जगत सगुण व्यवहार है, पूरा नाम रूप सृष्टि सगुण व्यवहार है। Everything that has properties and attributes are only experienceable through the senses and the sense of limitation of who I am. निर्गुण के व्यापार में, निर्गुण के बोध में, निर्गुण है वो निर्गुण है। कौन निर्गुण है? भगवान निर्गुण होके, दैट इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर इनिशियल स्टेजेस फॉर अस। जब हम भगवान को निर्गुण करके उपासना करते हैं तो वो निर्गुणत्व का भाव अपने अंदर भी बैठ जाता है, एंड कभी ना कभी वो फल देगा अपना, कि मुझे बोध होगा कि अरे निर्गुण तो मेरा स्वभाव है। तो ये मन क्या हो गया अपने आप? अमनः अहम। अमनः अहम हो गया। मैं क्या हूं? निर्गुण हूं। क्योंकि मैं निर्गुण हूं, निष्क्रिय हूं, कुछ नहीं करते। द सीयर ऑफ द ड्रीम, डू दे डू एनीथिंग इन द ड्रीम? The seer of the dream is only able to contribute by being there. उसका बस उतना ही रोल है। वो न्यूट्रल होके, अपक्षी होके, कोई पक्षपात रखे बिना बस वहां रहे, तो वो स्वप्न अपने आप आएंगे, अनुभव में होंगे और जाएंगे। बट बाय नेचर वो क्रिया नहीं कर सकता। इन द सेम वे एक्चुअली ईश्वर भी वही है, वो भी निष्क्रिय ही है। दो इट्स सगुण, सगुण इज ऑल आर आइडल्स एंड वर्शिप, बट उनका स्वभाव जो निर्गुण है, वो निर्गुण स्वभाव निष्क्रिय है। वही निष्क्रिय ईश्वर, वही निष्क्रिय जब आप बाहर उपासना करते हो उसकी, वो निष्क्रिय जब आप मनन से अपने ही स्वभाव में देखते हो, ये तो निष्क्रिय है। अब यहां कोई क्रिया कर नहीं सकती आपको। ये इट कैनॉट बी द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन।
This knowledge and its fructification cannot come by identification with the body. शरीर और इसके मन से जुड़ के ये बोध हो कि आत्मा निष्क्रिय है, एंड दैट आत्मा ये मेरे अनुभव में है तो मैं हूं ना। अगर हम ये बात कहें कि आत्मा निष्क्रिय है और मेरे अनुभव में ये बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये ज्ञान? इट विल बी एज फॉल्स एज सेइंग that this body is real. Am I making connection? If the body is said is not real, means aham vritti मेरी real नहीं है, तो अगर हमें कहा जाए कि ये आत्मा निष्क्रिय है और अगर ये भी मेरे अनुभव में ना होता अगर, तो ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ था। ये कभी मेरे अनुभव में आने तो वाला नहीं है, मानू ना मानू, तो ये है नहीं, मतलब तो ये तो अनरियल हो गया फिर, isn't it? You follow the steps of the logic, it will be unreal then. आत्मा अगर निष्क्रिय है और शास्त्र हमें ये बात बोल के खाली मन को तसल्ली दे रहा है, some Purva Pakshis would say that it is only to quieten our agitated samsaric mind. आत्मा तो निष्क्रिय है। अरे कोई साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन हो रहा है क्या यहाँ? वेदांत कोई साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन करता है कि तुम्हारा साइकोलॉजिकली तुमको रिपेयर करेगा? It's not a psychological repairing process alone. What is it saying? It's a process of negation and assertion of who you are. जो मैं नहीं हूं उसको त्यागो। स्नेक अपनी स्किन को त्यागता है, करता है ना? जब तक वो उसके अंदर साथ जुड़ा है वो तब उसको त्यागता है। कब त्यागता है वो? जब उसकी दूसरी स्किन की लेयर बन चुकी है, तब वो त्यागता है। हमको कब त्यागना है मन को? जब दूसरी लेयर बनी हो। अगर हम कभी विचार ही नहीं करें दूसरी लेयर का, तो वो लेयर बनती नहीं है, तो हम त्याग सकते नहीं है। दैट इज वाई शास्त्र विद्या सुन के भी मोक्ष तो बस बहुत रेयर कोई एक पाता है, क्योंकि सुनने के बाद जो अध्ययन का परिश्रम है, जो मनन का स्वाध्याय का एक परिश्रम है, जो उसका एक अपना तपस है, वो तपस फलीभूत कब होगा वो जीव के हाथ में नहीं है। बट जैसे ही वो लेयर तैयार हो जाएगी, ये त्यागना विल बी एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। मगर अभी उसको साधना के जैसे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम इतना जुड़े हैं कि हम दूसरे विचार को स्टेबलाइज होने नहीं देते, आत्मा विचार को हम ठहरने नहीं देते, हम उसको जड़ पकड़ने नहीं देते अपने अंतःकरण में। कौन से विचार हमारे ऑलरेडी पकड़ चुके हैं? जीव भाव और संसार के विचार। ये तो हमारे मन को ऑक्यूपाइड 24/7 रहते हैं, सोने भी नहीं देते। उल्टा इतना मन हमारा एक्टिव होता है कि हमें नींद भी नहीं आती है, हम सोने भी नहीं देते। अरे सोने दो तो थोड़ी देर तो भगवान ने दिया था रिलीफ, वो तो लेने दो कम से कम ना। चिंताग्रस्त ऑल दैट, हमारी नींद भी उड़ जाती है, इतनी फिक्र हो जाती है हमें। मुझे तो संस्कृति नींद उड़ा देती है। एक वर्ड समझ नहीं आया तो नींद गई मेरी, तो पूरी रात बैठ के सोचती रहती कि अरे ये क्षत्रिय प्रत्यय था कि ये क्या था, ये रिंग लिकार था, क्या था, सारी रात गई। एंड देन यू रियलाइज अरे आत्मा विचार करके नींद चली जाती तो अलग बात थी। अब तुम प्रत्यय को पकड़ के, वो भी कौन सा प्रत्यय? संस्कृत का प्रत्यय पकड़ के यहां तुमको पूरा थॉट तुम्हारा प्रत्यय है। अब तुम उसका त्याग, अभी तुम पढ़ के आते हो, समझ के आते हो, उसका त्याग करना। अब तुम संस्कृत के प्रत्यय को पकड़ के बैठ गए
कि अब संस्कृत का प्रत्यय समझ आएगा तो मुझे शास्त्र समझ में आएगा कि ये क्यों इसमें ये शत्र लगा है या क्यों इसमें ये लगा है, तो तब समझ में आए, तब मुझे उसका बोध होगा, इसलिए मुझे वो प्रत्यय पकड़। लेकिन वो प्रत्यय पकड़ के अगर नींद तुम्हारी चली गई तो तुमने पकड़ लिया ना उसको। तो अभी ये तो कुछ भी, द पॉइंट इज, जब हम संसार छोड़ते हैं, जब हम संसार छोड़ते हैं तो हमारा मन कुछ तो पकड़ेगा संसार से, बिकॉज अमनः की स्थिति will only come with a deep reflection and it takes its own time. अगर लौकिक विद्या हमको इतना समय लेती है जीवन में, और लौकिक विद्या हमारे सिर्फ शरीर यात्रा के उपयोगी है, and it doesn't give us anything more than शरीर यात्रा, फिर अलौकिक विद्या को लेके फिर उस पे मनन करना इसलिए होता है so that we don't go into speculation. इसलिए संस्कृत का भी हमको अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इमेजिनेशन का जो अपना ही साइकिल होता है, उससे तो शास्त्र भी कहता है इट्स अ डीपर डार्कनेस। बिना ज्ञान के जो हम अपने आप में निकल जाते हैं इन द नेम ऑफ थिंकिंग दैट दिस इज द राइट प्रोसेस, दैट इज अ डीपर डार्कनेस। So to follow what is the right path of discernment, the knowledge must have lot of clarity. Jeev must have lot of clarity. और उसमें शास्त्र हमें बहुत तरीकों से समझाता है. And this is one of the other methods where you can very clearly see, but it takes its time and effort, that whatever is gunas will have kriya, will be anitya, will have vikar, will have mala. ये सारे एक साथ जुड़ते हैं, और आप इनमें से एक को भी दूसरा पकड़ लो हाथ, which means निर्गुण अहम, तो निष्क्रिय अहम, तो नित्य अहम, निर्विकल्प अहम, निराकार अहम, निरंजन अहम, नित्यः अहम, मुक्तः अहम, निर्मलः अहम अस्मि. That is 34th verse. So automatically all these that are free of the qualities and limitations and bondage and divisions, आप कोई भी नाम दे दो, इससे भिन्न, and भिन्न is beautiful word, इससे भिन्न, एकदम विपरीत लक्षण वाला अहम आत्मा अस्मि. This आत्मा अहम ब्रह्मन्नस्मि, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि. दीर्घ संधि हो गई ना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि. I am of the nature of Brahma. But when I call myself aham, be very careful. When I'm calling myself aham, in my aham drishti, there is only the name and the form. There is only the date of birth. There is only religion and caste and creed and age and body and its problems and mind and its problems and relationship and its problems and no problems, okay. प्राप्ति and अप्राप्ति, हानि and loss and मतलब यही सब पूरा, you know, I sometimes wonder, या तो हम वाकई में पागल हैं, क्या वाकई में हम बड़े स्पेशल हैं, that भगवान has really given us this opportunity to stay with these thoughts, या तो we are completely, भगवान कहे अब इनका कुछ नहीं कर सकता, I am giving up. अगर ऐसा कुछ होता तो he wouldn't have given us the facility.
तो ऑब्वियसली है तो ये कर्म फल का, अगर पका है तो व्हाट इज द गुड यूज ऑफ लाइफ लेफ्ट? थोड़ा मनन में अगर मन आ जाए, थोड़ा विचार में, जो सब कुछ जो छूट रहा है, तो इसको मैं अभी क्या पकड़ के बैठी हूं? Isn't it a fact? तो सभी कुछ छूट रहा क्या? Where is the संबंध? I have this very beautiful reflection sometimes on and off. Which संबंध can I call as permanent? बस एक मनन, मुझे एक संबंध बता दो जो परमानेंट रहेगा। जब बहुत छोटी थी तो तब मन में आता था हाँ ईश्वर के साथ, क्योंकि मीरा और उन सबके एग्जाम्पल्स पढ़ते थे, तो अच्छा चलो भगवान से संबंध बना दो, हर जन्म में वो संबंध तुम्हारा परमानेंट रहेगा। बट व्हाट इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस? संबंध वहां भी परमानेंट नहीं है, वो संबंध भी नष्ट होता है, क्योंकि अद्वैत एकम एव अद्वितीयम तत्सत्यम, वही एक सत्य है। दैट लॉफ्टी नॉलेज जो हमको ये कहता है ततेव सत्यम, ततेकम सत्यम, एंड दिस जो हम पकड़ के बैठते हैं अपने मन को पूरे दिन में, आर दीज जस्टिफाइबल? दैट ब्रह्मन आई एम एंड माइंड इज होल्डिंग ऑन टू व्हाट इज, जो उन संबंधों को पकड़ के बैठा है जो सिर्फ इस शरीर से जुड़ के बनने वाले हैं। शरीर गया नहीं, संबंध गए नहीं। You don't want to keep up. We saw it in Vairagya Shatakam very, very well. Hits very hard and remains as an impression. Your wife, even Bhaj Govindam says that. Your wife will not want to keep the body. जिसको वो हक करके सोती है रोज, जिसको वो चाहती है कि she will say करो अंतिम संस्कार इसका, वापस ही ना आ जाए। Which means what? Nothing is permanent. And yet हमारे मन में कितना पकड़ के, what is getting lost if we can only remember this through this mananam also. What is precious and हम क्या give up करते हैं और हम क्या पकड़ लेते हैं, इसी में जीवन खत्म। And you do not know काल का भगवान, why do Puranas give us the knowledge of this 4 yugas and then उन युगों में all this कालांतर में Prabhavah, Pralayah, etc. Why does Bhagwan give us, Puranas give us this detailed analysis of the movement of time? Because as time will proceed, जिसको अब हम कलयुग का आरंभ कह रहे हैं, मैक्रोकॉस्म का अपना एक साइकिल जो है, जिसमें भगवान will keep manifesting the कर्म फलास, हमें जन्म वापस मिलता रहेगा अगर हमारा ज्ञान निष्ठ नहीं होता। तो आज अगर हम ये सब चीजें पकड़ के बैठते हैं, जब अभी भी जिंदगी में धर्म फिर भी जिंदा है, विद एवरी पासिंग टाइम द फोर्सेस ऑफ अधर्म विल ऑलवेज मैनिफेस्ट, विल ओवरग्रो। तब कितना forget about future. India is very, very safe at the moment. Look at the other countries. I saw one reel, the entire some Ukrainian had made a reel. Genuinely my heart still, every time I think of it, मेरी नींद वाकई में फिर से उड़ गई। आज के काल की स्थिति है ये। Their houses are, and this is somebody's, of course it's happening both sides, it's happening everywhere else, but it's an example. 70 plus 80-year-old lady, they have to pick up dirt from everywhere to sustain themselves. They get paid very little. There is only rubble and there is only nothing else. And
whoever had made a documentary on them, the documentary ended to say that after they got a call after 3 days that they had met this, that there is a bombshell around and she needs to be evacuated, and they were trying to contact, they could not. After 6 months, fortunately, she was still alive. She was evacuated. But my point here is, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आज की स्थिति है ये, हम अपने मन को इस स्लंबर से उठा सकते हैं कि अगर हम आज ये तपस्या ना करें फॉर आत्मबोध, तो हमारे को कोई गारंटी नहीं है कि ये सिचुएशंस ऑफ लाइफ विल एवर बिकम more comfortable for us, कि these rag dvesh that occupy our mind today have any justification at all. ये इस जीवन के संबंध के साथ बने हैं. राग द्वेष मेरे अंतकरण में जड़ पकड़ लेगा, वो हर जन्म में मेरे साथ रहेगा. अब ये सब अकलमंदी है कि शास्त्र को अगर पकड़ा है तो शास्त्र के रास्ते पे चलना इज मोर प्रोडक्टिव. अगर शास्त्र कहता है कि ये तपस्या कर लो, अभी कर लो, इज मोर इन्वेस्टेबल. Actually, I'll end at that. When should you invest in insurance? Life insurance, I'll talk, not medical insurance. When should you invest in life insurance? You pay less premium if you invest early in life. Younger age. More, Anji? And you get Sorry, more. sir, I said a younger age. At a younger age. That's when you invest. The lesser premium you pay, more benefits you get. We should all call ourselves in a situation of life where we are young. Spiritually in an environment where we can invest. This is a more conducive environment for investment. It will take less premium. बाद में कभी करेंगे तो प्रीमियम और बढ़ाना पड़ेगा. अकलमंदी है कि भैया मन को ना भरो मत चीजों से, क्योंकि ये जिन चीजों से हमने अपने मन को भरे हैं ना, वो इस जन्म के साथ ही स्वाहा हो जाएंगे. वो रिश्ता ही नहीं रहेगा. If there is a new birth, there will be new relations. But the Ragdvesh will go deep in my system, and with that Ragdvesh lens, I will view the next relationship also. तो ये केड़ा चक्र है, ये चक्र व्यू है. इस चक्र व्यू को सिर्फ कृष्णा का चक्र काट सकता है, और वो ज्ञान का चक्र है. अदरवाइज ये चक्र व्यू है. फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे. तो बेटर इज abide in a spiritual oriented life, and whatever practice it takes, whatever little one can do, abide in that. Rest of all of it is from the 4th chapter. We'll take borrow for today. कल का हम आज borrow कर लेते हैं. Rest of it will be स्वाहा. उसको यज्ञ कुंड में अर्पण. जीवत्वम को ब्रह्म बुद्धि में अर्पण. इस जीव भाव को ब्रह्म बुद्धि में अर्पण करना ही ब्रह्मार्पणम है. I'll conclude. Let's end the class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvesham Swastirбhavatu, Sarvesham Shantirbhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayaha,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।